Hello everyone. Today we are going to discuss most important one-liners on the topic interior of Earth, keeping UPSC, SSC, railways, and state PCS exam perspective in mind. So let's start. First one is the Earth's interior is mainly studied through indirect sources like seismic waves. Okay, so humans cannot directly observe the deep interior of the Earth because the deepest drilling done by humans is only about 12 kilometer, okay, which is extremely small compared to Earth's radius. ठीक है, therefore जो scientists हैं वो अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए इनडायरेक्ट सोर्सेज का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल योर सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, ओके, meteorites, okay, और ग्रेविटेशनल डेटा, राइट. क्योंकि अर्थ का इंटीरियर इतना इतना टेम्परेचर हाई है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम उसको डिग करने के लिए यूज करते हैं तो वो काम ही नहीं करता. ठीक है, सो अब तक जो डीपेस्ट ड्रिलिंग है इट इज ऑफ 12 किलोमीटर, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर सकें. सो वी यूज मीटेराइट्स, ग्रेविटेशनल डेटा, seismic waves. ओके, नेक्स्ट वन. The average radius of Earth is about 6371 kilometer. Okay. So this measurement helps scientists estimate the thickness of Earth's internal layers and calculate its density and gravitational properties. ठीक है. So average radius of Earth कितना है? 6371 kilometers. Next one. The Earth is divided into three major layers: crust, mantle, and core. So let's suppose this is Earth. So the outermost layer is crust. Okay. Right. Then middle one is mantle, and this is core. Right. Core is also divided into two parts: outer core and inner core. Okay. So crust, mantle, and core are differentiated or divided based on differences in their density, composition, and physical properties. Okay, each layer has distinct characteristics and plays an important role in Earth's geological processes. Okay? Next one is the crust is the outermost and thinnest layer of the Earth. तो जो crust होती है वो outermost layer है और thinnest layer है. ठीक है, and it contains क्या क्या है इसके ऊपर? कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट, माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, सॉइल है. ओके, और अदर लेयर के कंपैरिजन में जो क्रस्ट है इट इज द थिनेस्ट लेयर. ओके, एक्सट्रीमली थिन लेयर. नेक्स्ट वन. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर्स. ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है अर्थ का, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी एवरेज थिकनेस कितनी है? 35 किलोमीटर्स. लेकिन जो रीजन्स हैं जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे ये अर्थ सरफेस है तो ये यूनिफॉर्म तो है नहीं. ठीक है, माउंटेन्स भी हैं, देन ओशियंस भी हैं, राइट. ठीक है, यहाँ कॉन्टिनेंट्स भी हैं. ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका एवरेज थिकनेस कितना है? 35 किलोमीटर्स, राइट. और जो माउंटेन्स वाला जो थिकनेस है इट मे रीच as high as 70 kilometer due to tectonic compression. ठीक है, so continental crust vary करता है. Okay? Then the oceanic crust has an average thickness of 5 to 10 kilometer. So oceanic crust जैसे अब ये surface है, ठीक है, अब ये ocean है, ठीक है, अब इतना तो वाटर हो गया, इसके नीचे जो crust की लेयर है, ठीक है, वो रेंज करती है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 किलोमीटर्स. ओके, और जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज मेनली मेड अप ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स. ठीक है, रिमेंबर इट दैट ओशनिक क्रस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट वन. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम.
which together known as Sial. So these elements make continental rocks lighter compared to oceanic rocks. ठीक है, तो oceanic rocks lighter होती हैं, sorry, heavier होती हैं due to the presence of silica and magnesium, और continental crust compared to oceanic crust lighter होती हैं due to presence of silica and aluminum. So continental crust is mainly made up of Sial and oceanic crust is mainly made up of Seaman, means silica and magnesium, right? Because magnesium and iron content, are heavy and denser. So oceanic crust is denser and heavier. Right? So it mainly consists of silica and magnesium, right? Denoted as Seaman. Next one. The boundary between crust and mantle is called the Mohorovic discontinuity or Moho discontinuity. ठीक है, तो जो बाउंड्री होती है crust, then mantle, then core, right? So this boundary between crust and mantle is known as Moho discontinuity, right? So at this boundary जो seismic waves हैं वो suddenly अपनी स्पीड चेंज करती है. मतलब अर्थ की वेव्स को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ से सडनली वो अपनी जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो चेंज करती हैं. तो वो इंडिकेट करता है कि अब रॉक कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो चुका है. ठीक है, सो उस बाउंड्री को जो इन दोनों को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट? नेक्स्ट वन. The mantle extend from Moho to a depth of about 29 kilometers. ठीक है, तो this is crust, this is mantle. तो ये मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है, यहाँ से जो मेंटल की डेप्थ है वो कहाँ तक है? अबाउट 2900 किलोमीटर्स, राइट? सो दिस मेक्स इट द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ. द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ कौन सी है? योर मेंटल. और थिनेस्ट कौन सी है? आपकी अर्थ क्रस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन. The mantle is the largest layer of Earth and occupies about 84% of Earth's volume. ठीक है, so and making it the largest internal layer. ठीक है, so most of the Earth mass जो है वो कहाँ concentrated है? Mantle, right? Next one. The crust and uppermost mantle together form lithosphere, right? So lithosphere किसको बोलते हैं? जो आपकी crust है और जो upper mantle है उसको मिला के हम क्या बोलते हैं? आपका लिथोस्फीयर. ओके, और ये जो लिथोस्फीयर होता है इट इज द सॉलिड एंड रिजिड पार्ट, राइट? देन द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, तो अब जो लिथोस्फीयर है वो लार्ज पीसेस में डिवाइडेड है, उनको क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स. और ये प्लेट्स जो हैं वो स्लोली ओवर द टाइम और ओवर द अर्थ सरफेस मूव करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और क्या कॉज करती हैं? आपके अर्थक्वेक्स, volcanoes, mountain formation. Okay, next one is below the lithosphere lies the asthenosphere which is partially molten. ठीक है, अब ये lithosphere हो गया आपका which is crust and upper mantle, और उसके नीचे एक लेयर होती है आपकी asthenosphere. ठीक है, तो asthenosphere पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं, राइट? वो एक पार्शियली molten लेयर होती है, उसके ऊपर आपके टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं. एंड द सॉफ्ट एंड प्लास्टिक नेचर ऑफ दिस लेयर अलाउज द रिजिड प्लेट्स टू मूव. ठीक है, नेक्स्ट वन. द asthenosphere allows tectonic plates to move slowly, right? Next, the mantle mainly consists of silicate minerals rich in magnesium and iron. ठीक है, सो यहाँ पे जो रॉक्स होती हैं वो मच मोर डेंसर होती हैं जो कंपैरेटिवली जो कि क्रस्ट में पाई जाती हैं. ठीक है, फिर आपका आता है द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी. सो ये आपका क्रस्ट था, देन आपका मेंटल स्टार्ट हो गया था यहाँ से,
सो इस बाउंड्री को क्या बोला था हमने, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। अब मेंटल जहां तक है और जहां से आपका कोर स्टार्ट होता है, सो द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज नोन एज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? सो इस बाउंड्री पे सिस्मिक वेव बिहेवियर चेंज होता है ड्रास्टिकली, एकदम से, बिकॉज मटेरियल कंपोजिशन क्या होता है यहाँ पे, चेंज हो जाता है, राइट? सो द कोर बिगिंस एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। सो मेंटल कहाँ तक था आपका, 2900 किलोमीटर्स, और यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, कोर। ठीक है, एंड फिर वो कंटिन्यू कहाँ तक करता है, सेंटर ऑफ द अर्थ तक। ठीक है, अब कोर की कंपोजिशन क्या होती है? द कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, नीफे लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हेवी मेटल होते हैं। ठीक है, और ये हेवी मेटल्स होते हैं और कोर को एक्सट्रीमली डेंस बनाते हैं। ठीक है, ओके। सो कोर जो है वो डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, आउटर कोर एंड इनर कोर, राइट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। सो आउटर कोर जो होती है ना, वो लिक्विड इन नेचर होती है, राइट। अब अब मैं बताती हूँ, दिस इज द इनर कोर, दिस इज द आउटर कोर। अब ये जो लेयर होती है ना, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर लिक्विड नेचर होता है उनका, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जो इनर कोर होता है, वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होता है यहाँ पर, राइट, और बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जो इनर कोर होता है वो आपका सॉलिड होता है। ठीक है, सो द इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, राइट। नेक्स्ट वन, the outer core extends from about 2900 kilometer to 5150 kilometer depth. Okay, then the inner core extends from about 5150 kilometer to Earth's center. ठीक है, जो हो गया आपका नियर अबाउट 6371 किलोमीटर्स। ओके, देन द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस विद डेप्थ। सो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, सो डेप्थ के साथ आपका, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज नॉन एज जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट। सो द टेम्परेचर increase in temperature as we go deeper inside the earth is called the geothermal gradient. ठीक है, next one, this increases in temperature with depth is known as geothermal gradient. Okay, next, the average geothermal gradient is near about near the surface is about 25 to 30 degrees Celsius per kilometer. ठीक है, so temperature increases by 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ डेप्थ। Okay, next one, earthquake waves used to study Earth's interior are called seismic waves. ठीक है, seismic waves से आपका क्या स्टडी होता है, अर्थ का इंटीरियर। ठीक है, सो द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, ओके। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मेजर seismic waves, वो क्या होता है आपका, सीस्मोग्राफ, और उसका जो मैग्नीट्यूड मेजर होता है वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम, रिक्टर स्केल, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, there are two main types of seismic waves, body waves and surface waves. ठीक है, so these waves help scientists study the Earth's internal structure. ठीक, so seismic waves are mainly of two types, हमने पढ़ा। ठीक, so जो body waves होती हैं वो ट्रैवल करती हैं थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड आर फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिटेक्ट होती हैं कि कोई भी अर्थक्वेक हिट करता है वो आपकी होती है बॉडी वेव्स, राइट।
Then surface waves travel along Earth's surface and cause maximum damage, right? So surface waves जो होती हैं वो अर्थ के सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती हैं और सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है आपका सरफेस वेव्स, ठीक है। अब बॉडी वेव्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स, राइट। सो जो पी वेव्स होती हैं आपकी, दैट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। सो सिस्मिक वेव्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। तो जो पी वेव्स होती हैं वो फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, एंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एस वेव्स जो होती हैं, एस वेव्स आर स्लोअर, ठीक है, देन पी वेव्स एंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। So S waves travel only through solids, ठीक है। So the absence of S waves in the outer core indicates that the outer core is liquid, ठीक है। तो outer core जैसे ही आता है तो S waves जो हैं वो absent हो जाती हैं, shown, ठीक है। तो तो S waves जो है वो सिर्फ solid से travel करती हैं, इसलिए हमें ये indicate होता है कि जो outer core है it is liquid in nature, ठीक है। Okay, so thank you very much. If you like the video, click the like button, and for more exam-oriented one-liners, explanations, and quick revision videos, make sure to subscribe the channel and share it with your friends preparing for government exams. So thank you very much. Meet you in the next video.